A very warm welcome to the channel All India World. Today we have an amazing and inspirational personality with us. We have the director of Shangri-La English High School as well as ratified professor from the Osmania University. Sir, we welcome you. Thank you so much. Welcome. It's great pleasure being. It's a pleasure to have an interaction with people like you. To ask you a few questions, sir. The first question is, sir, we see you as an inspirational personality. Can you please tell us about your journey to success from education to being a successful person? See, basically, it feels good, Alhamdulillah, that people consider me as a successful individual. But yes, I still believe there are miles to go before I sleep. अभी और मंजिलें आगे और हैं. जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. So if people feel that I have become successful in life, I think one mantra of success in my life is never ever, Alhamdulillah, I can say this with the hand on my heart, कि never ever intentionally, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कभी मेरे वालिदैन का दिल नहीं दुखाया है, मगर हाँ मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि मैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरता रहूँ, उनकी दुआओं में हमेशा से रहूँ. हो सकता है गलतियाँ बहुत सारी मुझसे भी हुई हैं, बट येस अल्लाह जानता है कि मैंने हमेशा अपने वालिदैन की खुशी में अपनी खुशी तलाश की है. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ ऑलवेज पुश्ड मी. जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो आई वाज नॉट वेरी बैड एज अ स्टूडेंट, माशाल्लाह से आई वाज गुड. जी सर, बिल्कुल. वालिदैन की दुआएं उस मुकाम पे इंसान को पहुंचा देती जहां इंसान सोच भी नहीं सकता है. माशाल्लाह, वेरी हैप्पी टू हियर दैट. सर, देयर आर मेनी प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड, बट व्हाई डिड यू ओनली चूज टीचिंग ओनली? This is one question which I have been asked many number of times by many people, like why into teaching? I mean, it reminds me of an event wherein, you know, it was the year 2007. I gave the exam called as CDS, Combined Defence Service Examination, Class 1 Commissioned Officer in the Indian Air Force. I had the letter in my hand. It was a God-decided thing that I was destined to enter into this particular field of teaching. I remember the day when the first time I entered in class. It was 2003. I had given my MSET and there was a long gap between, you know, after you give your MSET and then you start your engineering course. At that point of time, दिल लगी के तौर पे मैं क्लास के अंदर एंटर हुआ था कि चलिए अभी वक्त बहुत ज़्यादा है तो ये वक्त हम बच्चों को पढ़ा के बिताएं, इस तरह से हम सोचे थे. मगर दिल की लगी बन गई and, you know, a hobby transformed into a passion. And I enjoyed doing this, and that's why probably I'm here. MashaAllah, that is very amazing and inspiring for us. And one more question to you, sir. I have personally seen that our society have very less respect for this teaching profession. Like, अगर कोई doctor है तो they will say like doctor है. So if someone is choosing teaching profession के वो बोलते हैं teacher है. So this kind of mentality some parents may have, and I can even say that parents doesn't give lot of I can say respect to the teaching profession. I want to know your thoughts regarding this. See, basically, I just have to say this for all the teachers. We are not supposed to get demotivated because teaching एक ऐसा profession है जो आपको, I mean, it is the creator of all professions. Point number 2, हम प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि मैं एक उस्ताद के नाते आप सबके दरमियान भेजा गया. तो हमेशा से ये बात याद रखनी चाहिए और हमारा दीन भी इस बात की तस्दीक करता है कि उस्ताद का मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत आला है. मगर रीज़न ये हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे स्टूडेंट्स टीचिंग एज अ प्रोफेशन को उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. उसका रीज़न इज़ रेम्यूनरेशन इज़ वन बिग थिंग. आप ये देख लीजिएगा कि वन ऑफ द लोएस्ट पेड जॉब्स इज़ अमंग्स द टीचर्स. ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा टैलेंट टीचिंग की तरफ है. Recently, as we know that the government has announced the new education policy, that is NEP 2.0. What do you think, in what ways it may improve the quality of education? See,
at the outset when NEP had come, I think there was lots of criticism. People showed the goods and the bads. Now NEP, if implemented effectively, I am sure it's going to boost up the students' morale. Yes, definitely. Even I have made a video on NEP 2.0 in which I have shown advantages. If it is implemented successfully, then there are a lot of advantages of this policy, which is going to benefit thousands of lakhs of students, I can say. Correct. One more question I would like to ask you, that we have all gone through the phase of lockdown. I mean, recently due to the COVID-19, and the lockdown has taught us numerous things. Numerous things, I can say. Even it has taught us a lot of things. So, what are the lessons which we can take from this lockdown, and what was the impact of lockdown on students, teachers, studies, education? I want to know your thoughts. To answer this question of yours, I'll go in a very step-by-step process. First thing, what lockdown has taught us. Lockdown ने हमको ये सिखा दिया है कि बेशक अल्लाह ही वो ज़ात है जो सारी दुनिया, सारी कायनात को अपने कंट्रोल में लिए हो। लॉकडाउन ने सिखा दिया है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मगर जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे, इंसान बस उतनी देर तक तरक्की कर सकता है। लॉकडाउन हैज़ टॉट अस मेनी थिंग्स। मैन हैज़ ऑलवेज बीन बोस्टिंग अबाउट his excellence in science, technology and everything, मगर एक वायरस ने इंसान को अपनी औकात दिखा दी है। तो लॉकडाउन से हमको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि हम किस तरह से इतनी आज़ादी की ज़िंदगी जो बिता रहे थे और उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे थे, हमको अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करना है अल्लाह की नेमतों का। दैट इज़ द फर्स्ट लेसन विच लॉकडाउन हैज़ टॉट अस। सेकेंड, लॉकडाउन हैज़ टॉट अस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, and that lesson is within the limited resources अपनी ज़िंदगी किस तरह से बिताएं। रिस्क की फरावानी नहीं, जब तंगी होती है हर इंसान को ये चीज़ का अनुभव हुआ है, एहसास हुआ है कि तंगदस्ती क्या होती है। हर इंसान को, हर माँ बाप को, हर बच्चे को इस बात का एहसास हुआ है कि स्कूल्स कितने इम्पॉर्टेंट है। आई एम वेरी वेरी श्योर एवरी वन ऑफ अस हैव रियलाइज्ड इट। आई स्पीक टू सो मेनी पेरेंट्स हु ऑलवेज कंप्लेन कि बच्चे स्कूल को आके पढ़ने की बात नहीं आती। हाँ, लॉकडाउन ने एक अच्छी चीज़ ये की है कि द स्कूल्स हैव बिकम मोर टेक्नोलॉजिकली कम्पिटेंट नाउ। हर वो टीचर जिसने कभी कैमरा देखा नहीं था, वो अब कैमरा में देख के पढ़ाना सीख चुकी है। जूम जैसे ऐप्स, ऑनलाइन क्लासेस, सो मेनी थिंग्स टेक्नोलॉजिकली डेवलप करने का मौका लॉकडाउन ने फराहम किया है। बहुत एक दर्दमंदाना एहसास के साथ ये बात बतानी पड़ती है कि ऐसे कई टीचर्स हैं जो आज तक इस लॉकडाउन की वजह से संभल नहीं पाए हैं। हम खुद कई लोगों को जानते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इससे अभी उभर नहीं पाए। वो टीचिंग प्रोफेशन हैज़ टेकन सच अ बैक सीट कि सारे के सारे सेक्टर्स में सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अनलॉक्ड, मगर इंस्टीट्यूशंस आज भी दे आर इन द फेज ऑफ लॉक। एग्जैक्टली सर, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि सब हो सकता है ज़िंदगी में सबके एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे वी फील डीमोटिवेटेड। सो अगर आपकी भी लाइफ में अगर ऐसा आया है तो आप वो फेज से कैसा गुजरे, उसको ओवरकम कैसा करें? आई वुड लाइक टू नो दैट। सबसे पहले तो ये कहूँ कि मालिक का बहुत बड़ा करम रहा कि ऐसे मौक़े बहुत कम आए हैं, मगर हाँ, जब कभी भी आए हैं माई पेरेंट्स हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्ट्स, माई फैमिली हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्ट। मगर एक मौका, एक वाक़या मैं आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इट वॉज़ माई PhD। नाउ लाइक PhD इज़ समथिंग विच यू डू आफ्टर योर PG, एंड आफ्टर योर PG आप ये देखते हो कि आपके बैचमेट्स दे आर क्लाइंबिंग अप दी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, उनको हॉलीडे ट्रिप्स प्लान हो रही हैं, कंपनी उनको पर्क्स दे रही है, वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम किताबों का मुताला करते बैठे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग रिसर्च। तो उस टाइम पे, and it is not, I mean, I would definitely want to say this कि PhD is not something which is an easy nut to crack। उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और मोटिवेशन इसलिए नहीं होता है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे जो गाइड हैं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी स्पिरिट में हमारी भलाई के लिए, मगर उनको जल्दी वो खुश होते नहीं। तो एक हम देख रहे हैं कि अरे ये मेरा दोस्त, इसको मेरे से कम मार्क्स आए PG में, अब वो फलां कंपनी में फलां पोजीशन पे है और वो इतनी तरक्की कर रहा है और तू किताब में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है। तो देर आर मेनी थिंग्स विच डीमोटिवेट। मगर एक बात ऐसी हुई थी, जब ये एहसास मैंने हमारे सर के सामने जिक्र किया था, डॉक्टर आर्यश्री के सामने, व्हेन आई मेड दिस थिंग, इसे तो एक काम कर, यू कम विथ मी बोल के एक हमारे सीनियर को हु हैड ऑलरेडी डन हिज PhD, उन्होंने कहा कि तुम फलां कंपनी में यू गो एंड यू टेक दिस बॉय अलॉन्ग विथ यू। तो व्हेन ही वेंट देयर,
जब उसने अपना कार्ड दिया तो जो रिस्पेक्ट उसने अर्न की, आई फेल्ट कि नहीं, ये जो मेहनत है इट इज़ रियली वर्थ इट. यू अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर हैविंग अ डिग्री विच इज़ द हाइएस्ट एकेडमिक डिग्री इन द वर्ल्ड. सो दैट अल्हम्दुलिल्लाह यू नो दैट्स हाउ. इसलिए कहते हैं ना, एक अच्छा उस्ताद मिलना बहुत खुशनसीबी वाली बात है, क्योंकि वही सिखाता है और उसका तरीक़ा जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई शुड थैंक माई टीचर्स फॉर दैट. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली एक अच्छे उस्ताद होना ज़िंदगी में एक तब्दीली आ जाती है एक अच्छे उस्ताद के ज़रिए. बिल्कुल सर, एज़ यू एन इंस्पिरेशनल आइकॉन, तो आई वुड लाइक टू नो, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बने. ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान कैसा बने. मैं हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये लॉ, क्योंकि मैं आमतौर पे फिज़िकल साइंसेस पढ़ाता भी हूँ और फिज़िक्स हैज़ बीन माई फर्स्ट लव ऑलवेज. तो आई ऑलवेज से दिस, आई टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉज. तो आई से अल्लाह's हेल्प एंड परसिवरेंस इज़ द लॉ ऑफ सक्सेस. अल्लाह की रहमत और आपकी मेहनत, ये दो चीज़ें जो है इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं. ये जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर आपके व्यूअर्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं तो दे विल डेफिनेटली रिलेट, बिकॉज ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने क्लास में कई बार सुना है कि इट इज़ अल्लाह's हेल्प एंड योर परसिवरेंस. क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की मदद करता है जो मेहनत और मुशक्क़त करता है. और मेरा फंडा ऑफ सक्सेस इज़ अपनी नीयत को सुधारो. आई पर्सनली फील दैट कि योर इंटेंट बिहाइंड बीइंग सक्सेसफुल इज़ व्हाट. इफ़ योर इंटेंट बिहाइंड, आपकी जो नीयत है वो अगर दुरुस्त है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी और कामरानी के साथ नवाजेंगे. तो वन थिंग इज़ दैट. सेकेंड थिंग इज़ परसिवरेंस. यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क हार्ड. जैसा कि एक मशहूर किस्सा है आपका कि एरिस्टोटल के पास एक इंसान जाता है और पूछता है कि मेरे को सक्सेस अगर चाहिए तो मैं क्या करूँ. तो उसने कहा ठीक है, उस नदी किनारे मिलो. तो जब वो नदी किनारे लेके जाता है, एरिस्टोटल उसका हाथ पकड़ता है और उसको दरिया के बीच लेके जाता है. ले जाने के बाद उसको पानी में उसका सर डाल दिया अंदर. अब वो इंसान तड़पता रहता है और वो छोड़ता नहीं. बहुत देर के बाद जब एकदम वो छोड़ता है तो वो इंसान बाहर निकलता है और ज़ोर से अपने मुंह से सांस लेता है. तो एरिस्टोटल पूछता है कि तू जब पानी के अंदर था तो तेरे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तलब हो रही थी. तो उसने कहा आई वॉन्टेड एयर, मेरे को हवा की तलब हो रही थी. उसने कहा ज़िंदगी में अगर तुम सक्सेस की तलब इसी तरह से रखोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. सो आई थिंक द सेम स्टोरी अप्लाइज फॉर एवरी इंडिविजुअल. जब तक आप सक्सेसफुल बनने की वो प्यास अपने अंदर नहीं रखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ख्वाब जब आप नहीं देखोगे और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी नींद से नहीं जागोगे, आप सक्सेस की तरफ नहीं पहुंच सकते हो. बिल्कुल सर, जैसे कि हम अक्सर सुनते आते हैं कि दो किस्म के लोग रहते हैं. एक वो कि सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं, एक वो रहते हैं कि जो उठते और सक्सेस अचीव करने के लिए कोशिश करते. वन मोर क्वेश्चन कि सर, नाउ डेज वी कैन सी दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु जस्ट फोकस ऑन रॉट मेमोराइजेशन. सिर्फ रट के पढ़ लेना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. दे जस्ट वांट के पढ़ लेना बस मार्क्स अप टू दिस मार्क्स के. क्योंकि पेरेंट्स भी, आई हैव सीन पर्सनली मेरी पेरेंट्स जस्ट फोकस रैदर देन द नॉलेज दे सी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो इससे स्टूडेंट्स में भी एक मेंटालिटी शायद डेवलप हो रही होंगी कि मार्क्स स्कोर करना है रैदर देन जस्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वो लोग को मार्क्स का ये हो गया. तो सर आपका इस पे क्या थॉट्स है? एक चीज़ तो ये है कि प्रेजेंट डे टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी is not with regard to the rote memorization, and I think the government is doing a fantastic job with the CC pattern in this thing. आप देख लीजिएगा कि हम एक ज़माना था जब हम बच्चों को बोलते थे कि भाई ये 15 आंसर्स आपको पढ़ लो, इसमें से एग्जाम में आंसर्स आ जाएंगे. मगर जब से पैटर्न चेंज हुआ है, that thing is not working. तो government now is forcing the children to focus on concepts. तो अब what the students have to do, मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का टेस्ट आना चाहिए. I believe that. जब आप टेस्ट, when you know the taste of the subject, only then you can involve into the subject and you can really excel in that subject. और इसमें रोट मेथड हो या कोई भी मेथड हो पढ़ाने के लिए, मेरे हिसाब से एक टीचर का बहुत अहम रोल होता है. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ वी डू दिस. एंड लेट मी टेल यू, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एंड द इम्पैक्ट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर. बट नाउ दी NEP, इफ़ जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाती है तो आई थिंक रोट मेथड से तो बच्चे आधे तो दूर हो चुके हैं, अब NEP से और ज़्यादा दूर इंशाल्लाह हो जाएंगे. Sir, your teaching is really amazing. We have seen it personally, and I would like to know, sir, what are the things which make your teaching different and amazing? Thank you so much for
those words of encouragement. But yes, see, as far as teaching is concerned, see, I have my own way of looking at and doing at things. Point number one, this I always tell whenever I get time to interact with other teachers also. Point number one, come to the level of the students when you have to explain. You don't show how, what is your level. आपका लेवल क्या है उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए. हमको बच्चों के लेवल पे आके बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू हैव द ट्रस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स, कि बच्चे को इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो आई कैन आस्क माई टीचर. मैं आमतौर पे क्लास में ये क्लियरली बोलता हूँ, बेटे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ रेज योर हैंड एंड आस्क. अगर उतनी भी हिम्मत नहीं हो रही तो बस आप मेरे को देख के ऐसा करो, फ्राउन करो. मैं समझ जाता हूँ कि देखो समझ में नहीं आया एंड आई री एक्सप्लेन वॉट एवर आई हैड टू एक्सप्लेन. सो कम टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. थर्ड चीज़, बच्चे को सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करो. एंड आई बिलीव वेदर इट इज़ फिजिकल साइंसेज, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स ऑल्सो, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट मॉरल्स एंड वैल्यूज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ इट. तो देन absolutely the children get attracted. If I am explaining to the students human eye and the colorful world, मैं सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करना है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है, हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन बनाया है which has been designed so beautifully. जब हम अल्लाह की हम्दो सना करेंगे तो बच्चे को हम बांध सकेंगे. I think these are all things which are very very important. And at the last, never ever degrade any student. मेरा बात मतलब आई ऑलवेज से दिस, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ आपके व्यूअर्स में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई विल एक्सप्लेन 100 टाइम्स. एक बार आपको समझ में आ जाने के बाद वो अमानत है आपके पास. यू शुड नॉट फॉरगेट इट. सो आई जनरली टेल दिस टू माई स्टूडेंट्स. सो आई थिंक फ्यू मोर स्टेप्स, बट आई थिंक स्टिल बहुत सारी चीज़ें मेरे को खुद अभी लर्न करने की है बाकी. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए वो आसान करे इंशाल्लाह. बिल्कुल सर, आमीन. लेट अस एंड दिस विद लास्ट क्वेश्चन सर. सर आपके स्टूडेंट्स जिस तरह स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेट होते हैं, आपको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है कि मैं इनकी तरह बनूंगा बोल के, तो आपको एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के तौर पे लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखते हैं, तो आप उनके लिए कुछ आपके मोटिवेशनल अल्फाज. एब्सोल्युटली. आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स एंड आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग द स्टूडेंट्स टू वन थिंग. देखिए, मैं बच्चों को ये बात भी शायद रेपिटेटिव लगे, मगर फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि अपने वालिदैन के चेहरे की मुस्कुराहट को जो बच्चा देखता है, मुस्कुराते हुए चेहरे को अगर अपने वालिदैन के देख ले तो उसको एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह ताला अता करता है. मैं ये अपने बच्चों से कहता हूँ, पूछता हूँ कि बेटे अगर उस मुस्कुराहट की वजह तुम बन जाओ तो अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेंगे, तो दुनिया की कामयाबी आपके लिए क्या होगी. तो आई ऑलवेज वॉन्ट टू से दिस. मैं कई बार बोला लाइफ में, वेन एवर यू फील दैट यू आर इन अ डायलेमा, आप एक कश्मकश में कि क्या सही है क्या गलत है, ऑलवेज योर पेरेंट्स, ये अगर मैं करूं तो मेरे वालिदैन इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेंगे. अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आई कि वालिदैन खुश होंगे तो याद रखिए वो काम सही है. Successful person is not someone who earns a lot. He is not a person who moves in an Audi and a BMW. He is not a person who wears only, Pan America and red tape shoes. A successful person वो है जिसके लिए उसके ख़ानदान के बुज़ुर्ग, उसके वालिदैन हाथ उठाकर दुआ करते हैं. तो I always say this. Secondly, something which is very very important. प्लीज़ रिमेंबर दिस. देखिए, अल्लाह ताला ने रिस्क इंसान का जो है वो मुक़द्दर में लिख दिया है ना. चाहे हम छलांग मार लें या गौता मार लें, जितना मुक़द्दर में है बस उतना ही हमको मिलना है. मगर क्या चीज़ सबसे अहम होती है वो ये होती है कि हम किस तरह से वहाँ तक पहुँचते हैं. और अल्लाह ने दुनिया को असबाब से चलाया है, तो जो मेहनत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नवाजते हैं. अल्लाह's help एंड परसिवरेंस, दिस इज़ द लॉ ऑफ सक्सेस. और हमेशा अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने वालिदैन की चेहरे की मुस्कुराहट बनना, बस ये रखो. आई एम श्योर अल्लाह ताला उस अमल से, उस नीयत से आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी इंशाल्लाह नवाजेगा. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू सो मच सकलैन.